sir. Morning, sir. Good morning, Good morning, sir. student. Good morning, beta. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, Tanmay. Aditya morning, Singh, sir. good morning. Aditya Singh, good morning. Good morning, sir. Very good, beta. Good morning, sir. Yes. Vivek Barai, good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Srishti Shukla, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Ritanshu Nikhade, good morning. Ritanshu Nikhade, good morning. Digesh Barhate, good morning. You are not audible, Digesh. Yes, sir. Okay. Digesh, which is your native district? Are you from Maharashtra or Gujarat? Maharashtra. Okay. Which is your native district? Jalgaon. Jalgaon. Jalgaon is famous for which fruit? Jalgaon is famous for which fruit item? Banana chips. Banana chips. Very good. So, how much kg banana chips do you have at your home? Sir, eaten. Huh? Eaten. All eaten. Acha. So you have finished all the banana chips, है ना? Yes, sir. ठीक है. चलिए, कोई बात नहीं. So Jalgaon and Bhusawal both are the nearer towns or cities, and that area is famous for the production of bananas, है ना? Yes, sir. And a very large farms of bananas you can see, okay, on both the side of roads. यदि आप रोड या ट्रेन से जाएं तो दोनों तरफ आपको बड़े बड़े बनानास के क्या मिलेंगे? प्लांटेशंस मिलेंगे. ठीक है, चलिए, गुड. सो yesterday we all have completed chapter number 1 in our subject civics. chapter 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था. आसमी, Yes, sir. Asmi Manthavar, had we completed chapter 1 yesterday? Yes, sir. Very good. ठीक है, अच्छी बात है ना? चलो. So now, if you remember, I told you people that from today onwards we are going to start with a new chapter. Okay, chapter number 2 in civics. Yes. Sir, can What you is explain it? Sir, can you explain once again that what we have to do in that activity that you have given yesterday? I need to explain the activity. Yes, sir. Beta, which activity would you like to say? Sir, civics. Acha, the yesterday one, na? Yes, sir. Okay. So yesterday, what I remember, I gave an activity on the. Good morning, sir. Good morning, beta. So yesterday I have given the activity. So I gave 2 activity, I think. The one activity I have given on public interest litigation. Is it so? Yes, sir. Good. Sir. So the information about the public interest litigation, you people need to take out from internet. ठीक है? गूगल में जाकर के क्या टाइप करना? Public interest litigation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. then come to the second activity. ठीक है?
अभी जो सेकंड एक्टिविटी हमारी है वो कौन सी है? दिस वन, ठीक है। Which fundamental rights will the following situation violate? इसी के बारे में था, Yes, sir. ठीक है। Now, Yes, sir. so which fundamental rights will the following situation violate? अभी यहाँ पर क्या है? पहला है, if a 13-year-old child is working in a factory which is manufacturing carpets, ठीक है, कारपेट बनाने की फैक्ट्री में यदि 13-year-old चाइल्ड काम कर रहा है, तो बताओ इसमें से कौन से राइट्स का वायलेशन है? इट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट इज अ वायलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट? Right against exploitation. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Next situation is, if a politician in one state decides to not allow laborers from other states to work in his state, यानी यहाँ क्या हो रहा है कि किसी एक स्टेट का पॉलिटिशियन, किसी एक राज्य का पॉलिटिशियन ये डिसाइड करता है कि वो किसी दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्य के पॉलिटिशियंस को अपने राज्य में काम करने नहीं देगा, ठीक है ना। देन इट इज व्हाट? द राइट टू फ्रीडम। ये किसका वायलेशन है? इट इज द वायलेशन ऑफ right to freedom. Right to freedom. Right to freedom. Right to freedom. Next is, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, ठीक है, यदि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को केरला में तेलुगु मीडियम स्कूल ओपन करने की परमिशन नहीं है, इट इज अ वायलेशन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये किसका वायलेशन है? Cultural and educational rights. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन नेक्स्ट क्या है? इफ द गवर्नमेंट डिसाइड्स not to promote an officer of the armed forces for being a woman, यदि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर दे, लिख दे कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी में या सेना में किसको भर्ती होने की परमिशन नहीं है, विमेन को भर्ती होने की परमिशन नहीं है। ठीक है। So if the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? It is a violation of which fundamental right? It is a violation of the right to equality. किसका है? Right to equality. Okay. So no citizen can be discriminated. No citizen can be discriminated. No citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. किसी भी सिटीजन के साथ क्या नहीं किया जा सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि मैन कैन ज्वाइन द आर्मी, women cannot join the army. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
So now I am closing this PDF. ठीक है, अभी चैप्टर 1 बंद कर दो. Yes, sir. Good. Yes, sir. Now, is the textbook visible? Chapter 2 is visible. Yes, sir. So, now we are having chapter number 2, and when we were doing discussion on chapter number 1, जब हम हमारे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, है ना, जब हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उस समय पर, ठीक है, हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी या फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे. तो जब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, दैट टाइम वी कम अक्रॉस दिस टर्म. उस समय पर हम लोग इस टर्म पर आए थे, और वो टर्म क्या थी? व्हाट वाज दैट टर्म? सेकुलरिज्म. यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इस पूरे चैप्टर में, इन दिस होल चैप्टर, what are we going to discuss? We will only discuss about this particular issue of secularism. इस पूरे चैप्टर में हम सेकुलरिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म के बारे में ही डिस्कशन करेंगे. यानी इस चैप्टर का हमारा पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली इसके बारे में रहेगा, Secularism. सेकुलरिज्म के बारे में. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Okay. Now, so हिमांशी हनुमंते, हिमांशी जय कोरासे, कपिल श्रीवास्तव, where are you? हिमांशी हनुमंते, जय कोरासे एंड कपिल श्रीवास्तव, तीनों में से कोई प्रेजेंट हो तो आवाज लगाओ. यस सर बोलिए. मानविक सिंह, नेहा कुमारी, मानविक सिंह, आर यू प्रेजेंट? मानविक सिंह, Sir, Jai Kaurasi is present. हाँ, but he is not saying anything ना. Is it Sai and Jay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये साई और जे ये कौन अटेंड कर रहा है? Jai. Sir, we both are doing in one mobile because his mobile is taken by his brother. You just tell me who is Sai here. Sir, I am Sai Bhavne, class 8B. Sai Bhavne and Jay Korase. Yes, sir. So both of you are joining with the one single na? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Sir, camera. अभी एक काम करना, जब तुम लोग इससे ज्वाइन करते हो, है ना,
तो जो टीचमेंट ऐप है ना, टीचमेंट ऐप में आपका नेम आ रहा है साई एंड जय। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पूरा नेम क्या है। तो साई बावने एंड जय कोरासे पूरा लिखना। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो वो नेम आपको एडिट का ऑप्शन आता है ना अपने पास। यस सर। हाँ, प्रोफाइल में कहीं ना कहीं एडिट का ऑप्शन होगा, तो वहां पूरा कंप्लीट करना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो तन्वी बोबाटे, आर यू प्रेजेंट? नो, चलिए। So now let us begin discussion on this chapter. So this is chapter number 2. The name of the chapter is Understanding Secularism. ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, एक वर्ड सेकुलरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब क्या है, word is a very small, one single word secularism, but इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड 8th में हम ये पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, एंड इन स्टैंडर्ड 9th as well as in standard 10th also we will discuss this term in many chapters. इस टर्म को हम बहुत सारे चैप्टर्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब मेरा कहने का मतलब इतना है कि कहने को ये एक सिंगल टर्म है सेकुलरिज्म, एक शब्द है, बट इट हैज ब्रॉड मीनिंग्स। इस शब्द के बहुत ब्रॉड, बड़े बड़े मीनिंग्स हैं। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. In different conditions, what I would like to tell, in different conditions, okay, secularism is used in different parts of the world. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में सेकुलरिज्म किस तरीके से चलता है, इसका रिलीजन से क्या रिलेशन है, इंडिया में हमने सेकुलरिज्म क्यों अडॉप्ट किया, सेकुलरिज्म अडॉप्ट करना जरूरी क्यों था, तो ये सारी बातें एक एक करके हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हु इज दिस नुकुल तलांडे? नुकुल, वीडियो ऑन करो जरा बेटा, वीडियो ऑन करो। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, हु इज मयूरी तलांडे? नुकुल तलांडे सर सिस्टर। सर सिस्टर। शी इज योर सिस्टर? यस सर। वेरी गुड, गुड बेटा। चलिए, सो नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. तो यहाँ कहानी क्या बोली जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। यानी यूएसए नाम की कंट्री है, वहां पर ईसाई काफी ज्यादा ताकतवर है, क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग बहुत पावरफुल हैं। अमेरिका की सोसाइटी पर, अमेरिका के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्हीं लोगों का कंट्रोल। ठीक, नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम। अब इमेजिन करिए कि आप या तो हिंदू रिलीजन को मानने वाले हैं
या मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, और आप कहाँ रह रहे हैं? यूएसए में रह रहे हैं। ठीक, नाउ डिस्पाइट बीइंग ए यूएस सिटीजन, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप मिल गया, आप यूएसए के नागरिक बन गए, बट नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू, कोई भी अपना घर या मकान आपको किराए पर देना नहीं चाहता। ठीक, नाउ यदि ऐसी सिचुएशन है तो हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको मन में कैसा लगेगा? शिवराज बड़ई, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सर बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, ठीक है। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या इस कंडीशन में आपको गुस्सा आएगा? अनुष्का रॉय, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? चलिए, मंथन गागर गुंडे, ऐसी कंडीशन में गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? सर है। मंथन, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? ठीक, सो वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? इस कंडीशन में हमें क्या आएगा? गुस्सा आएगा। What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और भी बुरी कंडीशन, खराब सिचुएशन कब बनती है? जब क्या हो, आप इस सिचुएशन, ये जो स्थिति आपके साथ बनी है, क्या हो जब ये स्थिति आपके साथ बनी है और आप इस कंडीशन की क्या करने गए? कंप्लेंट करने गए। क्या करने गए आप? कंप्लेंट करने गए। आपने अपने साथ हुए इस कंडीशन की शिकायत करी, और शिकायत करने आप गए तो आपको बोल दिया जाएगा कि इतना ज्यादा परेशानी है तो वापस इंडिया चले जाओ। तो आप क्या करेंगे? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आपको इस प्रकार के जवाब पर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? यस सर, आएगा। वेरी गुड। गुस्सा आएगा। गुड। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म। अब यदि आपको गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो आप दो काम कर सकते हैं। जैसे मान लो आज यदि अभी हमारी क्लास चलते चलते है ना, और नेटवर्क फेल्यूर की वजह से अनुष्का रॉय क्लास नहीं देख पा रही है, तो अनुष्का रॉय को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा। अब अनुष्का रॉय को गुस्सा आएगा तो अनुष्का दो काम कर सकती है, या तो गुस्से में उठा करके मोबाइल फेंक करके तोड़ देगी। तो क्या अनुष्का रॉय मोबाइल तोड़ देगी? नो सर। अरे तोड़ दे, गुस्सा आ रहा ना। क्या तोड़ेंगे? नो सर। अच्छा, तो फिर बताओ क्या करोगे? What will you do? सर हम पहले खुद को शांत करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे ज्वाइन होने का। वेरी गुड, है ना? यानी योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म। दो तरीके से हम हमारा गुस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है? मोबाइल फोड़ के या शांत करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे ज्वाइन होने की। गेटिंग द पॉइंट? सो लाइकवाइज, यदि इस टाइप की सिचुएशन, इफ एनी पर्सन हैज टू फेस, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सिचुएशन फेस करना पड़ रही है तो क्या होगा? You might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. You might react by saying, या तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे है ना, हम लोग
अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है और हिंदू और मुस्लिम माइनॉरिटी में। तो हमारे साथ मेजॉरिटी क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो हम गुस्से में आ जाएंगे, अच्छा बेटा तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, जरा तू इंडिया में आ, फिर हम तेरे को देख लेते हैं। होता है ना? यस सर। हाँ, जैसे अनुष्का रॉय जो है ना, जब G2 क्लस्टर में खेलने जाती है तो G2 क्लस्टर वाले क्या करते हैं, उसको अच्छे से नहीं खिलाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अनुष्का रॉय गुस्से में आ जाती है, बोले अच्छा अब तू आ मेरे क्लस्टर में, मैं फिर तेरे को बताती हूँ। ऐसा कभी हुआ है अनुष्का? यस सर। कभी कभी हमारे मन में फीलिंग आती है ना। यस सर। यस सर। हाँ, शाविनी, शाविनी, Yes, sir. have you come across this type of situation? No, not yet. Not yet, है ना? But sometimes इस टाइप की फीलिंग क्या आ सकती है लोगों के माइंड में Yes, sir. कि तुम्हारी कंट्री में हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तो आप रुक जाओ, मेरी कंट्री में कभी आओ, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। Is it happening? Yes. अच्छा, Yes. where is Simal दीदी? What, sir? Where is Sibal Niranjane? Sir, actually, yesterday we went to drop her. Her institute is started in Nagpur. Okay. So she is in Nagpur right now. Yeah. Okay. So is she preparing for the engineering course or the physician course? NEET के लिए try करेगी? NEET. NEET. Okay. NEET. She wants to become physician, है ना? Yes, sir. अच्छा, what is the meaning of physician? I don't know. फिजिशियन को हम नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डॉक्टर, है ना? Okay. हाँ, but is not actually a doctor. The more correct term is a physician. What is it? Physician. Physician. चलिए, well, so you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindus and Muslims are in a majority. हमारे दिलो दिमाग में रिएक्शन आएगा, क्या क्रिश्चियंस के साथ हम वही करेंगे जो ये हमारे साथ करते हैं। Now this is a form of retaliation. ये क्या कहलाता है? What is this? Retaliation. Retaliation मतलब बदला। तो ये कौन सी भावना हुई? बदले की भावना हुई, ठीक है। एंड सेकेंड वे, पहला तरीका तो बदले का, अब दूसरा तरीका क्या है? यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अब हमारा सोचने का दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका क्या है? देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय होना चाहिए। यू मे फाइट stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. Okay, हम बिना किसी बदले की भावना के कॉन्स्टिट्यूशनल वे में क्या कर सकते हैं? अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि no one should be discriminated on grounds of their religious practices and belief, है ना? अपने धर्म के आधार पर किसी के भी साथ क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। This statement rests on the assumption that all form of domination,
related to religion should end. ठीक है, धर्म के आधार पर, धर्म के बेस पर किसी भी प्रकार का डोमिनेशन एंड हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए. दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म. ठीक है, और ये जो इतनी चीज हमने लास्ट में डिस्कस करी, वही क्या कहलाता है? सेकुलरिज्म कहलाता है. क्या कहलाता है? What does it mean? So secularism क्या कहता है? What is the principle of secularism? Secularism क्या कहेगा? No one should be discriminated. किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. On the ground of their religious practices and belief, यानी उनके धर्म के आधार पर, उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी कब मिलेगी? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी कब होगी? ठीक, so this statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. यानी डिस्क्रिमिनेशन कब नहीं होगा? जब all form of domination related to religion should end. धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डोमिनेशन क्या हो जाना चाहिए? खत्म. Sir, Sir. sir, your voice is not Sir, coming. your voice is not. Sir, and the Sir, Sir, your your voice is not coming. Sir, you are freeze. Please, what do you mean? Sir, your voice is not coming. Sir, your screen is stopped and your voice is also not coming. Sir, you are not visible. Sir, your screen is freeze and your voice is not coming. Sir? Sir, you became statue. Sir? Sir? Sir, your voice is not coming. I think network problem.